Hello guys, I am Dr. Satkala. Our today's topic is Sailing to Byzantium. Sailing to Byzantium, it's a nature poem. It was written by W.B. Yeats. So please like, share and subscribe to our channel. Here in this poem, Sailing to Byzantium, I will give the full explanation of the poem by line to line, and here I will discuss about the literary devices that were used in this poem. Here are used many types of literary devices like assonance, alliteration, metaphor, personification, oxymoron. So here are used these types of figure of speech in this poem. In rhyme scheme also AB here is the rhyme scheme in this poem. Sailing to Byzantium. This poem, why William Butler Yeats, why he wrote this poem? It was written in 1926 and it was published in 1928. What was the motto of the poet to write this poem? Because here the poet shows the old age's problem of the old age. How the poet presents the things, two types of things present here. One type of thing that is transience, that is changing of life, our life that is not permanent, it will change, it will our life that will change in death. After that we will born, and after that death is come, it's final. And the next thing that shows the permanence of nature, and the life, and after that death. So here one thing shows that is temporary base, and another one is permanence. This poem is, it is narrative poem and it is about nature, related to nature. Here the poet tells about the journey of an old man. Here the narrator, who is the narrator? The narrator who is an old man. यहाँ पे old man है, उसका narrator है. वो traveling कर रहा है. कहाँ से traveling कर रहा है? आयरलैंड से. और कहाँ जाता है? To a new country. What was the name of new country? Byzantium. Byzantium जो new country है वहाँ पे जाता है आयरलैंड से. बिकॉज W.B. Yeats was a आयरिश पोइट है, तो वो आयरलैंड जो है सिटी, उसके बारे में और किस प्रकार से जाने के बाद जो है ओल्ड मैन पीछे मुड़ करके अपनी जो सिटी है, अपना जो कंट्री है आयरलैंड, उसकी तरफ देखता है, फॉर्मर कंट्री की तरफ, और उसको बताता है कि किस प्रकार से जो मेरी फॉरवर्ड जो कंट्री है आयरलैंड जो है, वहाँ पे कोई प्लेस नहीं है ओल्ड मैन के लिए, क्योंकि वहाँ पे यंग जनरेशन है. पूरे वो यंग जो जनरेशन है वो पूरी तरह से सेंसेस में डूबी हुई हैं. तो किस प्रकार से, और वो यहाँ पे ये भी बताता है कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ओल्ड एज, की ओल्ड एज में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पोइम सेलिंग टू बिजेंटियम. किसके बारे में है? नेचर पोइम है, अबाउट नेचर के बारे में है, नरेटिव पोइम है. नेचर के अबाउट नेचर है, नरेटिव पोइम है. और ओल्ड मैन की यहाँ पे नरेटर कौन है? ओल्ड मैन है, जो जर्नी है जिसकी ट्रैवलिंग टू ए न्यू कंट्री, एक न्यू कंट्री. और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू कंट्री? बिजेंटियम. बिजेंटियम में जाता है और आयरलैंड से जाता है, और ओल्ड एज की डिफ़िकल्टीज़ दिखाई गई हैं. वो हर चीज़ में ये देखता है कि वहाँ पे एजुकेशन जो है उसमें भी क्या है, सेंसेस है, उसमें भी इंटेलेक्ट नहीं है. और पोइट जो है, नरेटर जो है, वो क्या ढूंढ रहा है? हर चीज़ में अमेजिंग इंटेलेक्ट ढूंढ रहा है. और किस प्रकार से वो लास्ट में किसकी तरफ मूव कर जाता है? बिजेंटियम की तरफ मूव कर जाता है. इसमें लिटरेरी डिवाइसेस भी काफ़ी यूज की गई हैं. तो लेट अस स्टार्ट्स विद एक्सप्लेनेशन. That is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations at their song, the salmon falls, the mackerel, crowded seas, fish, flesh or fowl, command all summer long, whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music, all neglect, monuments of an aging intellect. तो यहाँ पे पूरा जो स्टेंजा है उसमें क्या क्या यूज हुआ है? उसमें एसोनेंस का यूज है. व्हाट डू यू मीन बाय एसोनेंस? एसोनेंस क्या होता है? जहाँ पे वावल का जो है रिपीटेशन होती है. तो यहाँ पे वावल की जो रिपीटेशन है काफ़ी हुई है. जैसे फर्स्ट लाइन दैट इज़ नो में ओ है, कंट्री है, ओल्ड है. तो इस प्रकार से ओ की यहाँ पे रेपिटेशन, ओ क्या है? वावल है. तो वावल की रेपिटेशन जिसमें होती है उसको हम बोलते हैं
एसोनेंस, जहाँ पे कॉन्सोनेंट की होती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी काफ़ी इसमें यूज हुआ है। इसमें जो फिफ्थ लाइन जो है फीस फ्लैश फाउल, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। फर्स्ट जो लेटर है कॉन्सोनेंट उसकी रिपीटेशन हुई है तो देर इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एलिट्रेशन का, और यहाँ पे यंग, सॉन्ग, ट्रीज, सीज, ये यहाँ पे क्या है, राइम स्कीम ए बी यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें फर्स्ट में दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। यहाँ पे पोइट कहता है कि इन आयरलैंड, कंट्री यहाँ पे किसको, आयरलैंड, दैट देर इज इन आयरलैंड देर इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस फॉर ओल्ड मैन, कि आयरलैंड जो है वो ओल्ड मैन के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है। वाई, क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे गेट ट्रंगल्ड इनटू सम सेंसुअल म्यूजिक, बिकॉज यहाँ पे जो यंग जो मैन है, यंग जो है वो वन अनदर्स आर्म्स, वो क्या है, अचीविंग आर्टिस्टिक एजलेस जो अकम्प्लिशमेंट है ऑफ द इंटेलेक्ट, उसमें वो डूबे हुए हैं। और यहाँ पे जो डाइंग जो जनरेशन है, बर्ड्स हैं, यंग लवर्स हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, एक जो साइकिल चल रहा है डेथ टू बर्थ, उसके अगेंस्ट जो है सेंसुअल जो सेलिब्रेशन है वो उनका चल रहा है। यहाँ पे यंग जो लवर्स हैं दे आर इन ईच अदर्स आर्म्स। बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ के ऊपर बैठ करके सिंगिंग कर रहे हैं, फिशीज़ हैं, फाउल हैं, यहाँ पे सिंग कर रहे हैं, सब कुछ वन सेम सॉन्ग गा रहे हैं। और कौन सा सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ द सेंसेस का सॉन्ग गा रहे हैं। तो इन दिस वे ऑल दिस एट द सेम टाइम आर क्रिएचर्स हु आर सब्जेक्टेड टू डेथ। लेकिन सबको एक दिन क्या होना है, सबके सब जो हैं वो सब्जेक्टेड टू डेथ, डेथ के वो सब्जेक्ट बन जाएंगे, डीके उनका हो जाएगा। इसके बावजूद भी तो यहाँ पे कहता है कहीं ना कहीं ये पूरा जो आयरलैंड है दैट इज़ अ प्लेस फॉर ओनली एंड ओनली फॉर यंग जनरेशन, ओनली फॉर यंग बर्ड्स, ओनली फॉर fees, only for lovers, though this is not the right place for the old age persons, so he moved to sailing to Byzantium। तो इस वजह से वो कहाँ सेल कर जाता है, कहाँ किसकी तरफ मूव कर जाता है, बिजेंटियम प्लेस की तरफ। तो यहाँ पे यही है कि वन अनदर्स के आर्म्स में जो लवर्स बैठे हैं वो एक दूसरे की आर्म्स में हाथ डाले, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले बैठे हैं, बर्ड्स इन द ट्रीज़ के ऊपर बैठ करके। और ये डाइंग जो जनरेशन है, बिकॉज डाइंग जनरेशन मीन्स ये जो जिनका बर्थ हुआ है आफ्टर दैट दे विल बी द सब्जेक्ट ऑफ डेथ। उनका सॉन्ग जो है, सालमन जो फॉल्स गिर रहे हैं, मैकरल जो क्राउडेड जो सीज हैं वो पूरे भरे हुए हैं, फीस हैं, फाउल हैं, ये भी सारे के सारे समर लॉन्ग इसमें जो कमांड है उसके ऊपर चल रहे हैं। वट एवर इज़ बिगोटन बॉर्न एंड डाइज, वट एवर जो कुछ भी है जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसका भी जन्म हुआ है उसका जो है वो इसका डेथ का जो है सब्जेक्ट जरूर बनेगा। और कोट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल निगलेक्ट, और इस सेंसुअल म्यूजिक में सबने किसको निगलेक्ट कर दिया है, सबने इंटेलेक्ट को निगलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो नरेटर है, जो एक एजलेस जो इंटेलेक्ट है, एजलेस कौन है, जो ओल्ड एज है, उनके पास जो एक बुद्धि होती है, उनके पास एक एडवाइस होती है, तो हर कोई किसको निगलेक्ट कर रहा है, जो ओल्ड एज की जो एक इंटेलेक्ट है, एक बुद्धि है, उसको एक बुद्धिमत्ता, एक जो एडवाइस है, उन सबको वो क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेंज। सेकेंड है, एन एज्ड मैन इज बट ए paltry thing, a tattered coat upon a stick, unless shall clap its hands and sing, and louder sing for every tatter in its mortal race. Nor is there singing in school, but studying monuments of its own magnificence. Therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium। इसमें सेकेंड जो स्टेंजा है उसमें कहीं कंपेयर की गई है, कहीं पे पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है, यहाँ पे मेटाफोर का यूज किया गया है लिटरेरी डिवाइसेस में, और दूसरा जो है पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है। सेकेंड जो लाइन है, टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक अनलेस, यहाँ पे किसका, मेटाफोर का यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे कंपेयर किससे की गई है, टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, यहाँ पे एक क्रो से, एक स्केर क्रो से कंपेयर की गई है सेकेंड इसमें। तो देयर हेयर इज यूज्ड मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, अप्लाइड कंपैरिजन। मैंने फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, यू कैन वॉच इट, जिसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन एग्जाम्पल दे करके बता रखा है। तो ये मेटाफोर यहाँ पे यूज किया गया है। उससे नीचे शोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग। शोल, हमारी आत्मा ऐसा कहीं कभी हैंड्स ऊपर करके और गाती हैं, तालियां बजाती है, जोर जोर से गाती है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा जहाँ पे जो यूज होता है, जहाँ पे इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को या फिर जो थिंग्स होती हैं हमारी कुछ वो होती हैं, उनको उसको किसमें जब एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है तो दैट्स कॉल्ड, वहाँ पे हम पर्सनिफिकेशन का यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है।
सेकेंड लाइन में मेटाफोर का और थर्ड में शोल क्लैप, इसमें यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। बट द पोइट सेज, पोइट इस सेकेंड स्टेंजा में यही कहता है कि एज जो मैन है उसको क्या मान लिया है, पेटी थिंग मान लिया गया है। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो किसकी पावर है, फिजिकल पावर्स है। यहाँ पे यंग जो जनरेशन है, यंग जो एज है उनकी पावर है। और यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल मतलब जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में भी वही सेंसेस भरी गई है, उन्हीं के जो मोनामेंट्स है, उन्हीं की मैग्निफिसेंस, उनका ही सिग्निफिकेंस दिया गया है, उनकी इंपॉर्टेंस दी गई है। बाकी जो उसमें जो एज का जो इंटेलेक्ट है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। तो इस वजह से नरेटर जो है वो क्या कहता है, इस वजह से मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, आई हैव सेल्ड द सीज एंड कैम टू द होली सिटी ऑफ बिजेंटियम, मैं तो बिजेंटियम की तरफ जा रहा हूँ। एन एज्ड मैन इज बट ए पोल्ट्री थिंग, एज्ड मैन क्या पोइट यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या कहता है कि आइलैंड बीइंग ए कंट्री नॉट गुड फॉर ओल्ड मैन हु आर अदरवाइज अ पेटी थिंग है। यहाँ पे डिकेइंग जो अलोंग विद देयर फिजिकल पावर्स, क्योंकि ओल्ड मैन जो है वो क्या डिके कर गया है, वो अपनी फिजिकल जो पावर्स है, बिकॉज ही वॉज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, वो अपनी जो वर्क भी अपने आप नहीं कर पाता है, वो अब इतना ज़्यादा उसमें एनर्जेटिक नहीं रहा है, वो अपनी फिजिकल जो पावर्स है वो खो दिए, तो इस वजह से दैट कॉल्ड पेटी थिंग, वो पेटी थिंग बन गया है। यहाँ पे ओनली जो सब्सिट्यूट फॉर देम जो है टू हैव देयर शोल एजुकेटेड इन ए वे, यहाँ पे जो यंग जनरेशन है उनकी जो शोल है, यहाँ पे टेटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक अनलस, इसके बावजूद जो है वो क्या किया जाता है कि उनकी जो शोल है उनको एजुकेट इस तरीके से किया जाता है कि वो क्या करना स्टार्ट कर दे, क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दे अपने हैंड्स उठा करके, और ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दें। फॉर एवरी टेटर इन इट्स मोर्टल रेस, और यहाँ पे नेवली जो लर्नड जो भी सॉन्ग जो गा रहे हैं, जो भी शोल ने सॉन्ग जो सीखा है, मेक्स इट टू रिजॉइस, वो रिजॉइस करें, बिकेम लाउडर एंड लाउडर एज द फिजिकल पावर्स ऑफ द ओल्ड मैन गो बैक टू वर्स, और जितना ज़्यादा वो कर रहे हैं उसको अपनी फिजिकल पावर का यूज कर रहे हैं, क्लैपिंग और ये सब, तो उनकी जो फिजिकल पावर है वो बैड से भी क्या बन गई है, और भी ज़्यादा वर्स बन गई, और भी ज़्यादा बुरी बन गई है। नोर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मोनामेंट्स, कोई भी स्कूल यहाँ पे जो है वो इस तरीके का सॉन्ग जो है यहाँ पे कहता है कि ओनली डिफिकल्टी ओल्ड मैन के लिए क्या है, फाइंड सच ए सिंगिंग स्कूल, यहाँ पे ऐसे स्कूल जो है वो उनको मिल रहे हैं वेयर द सोल कैन गेट एजुकेटेड, जहाँ पे सोल जो है वो एजुकेटेड ही हो सकती है। और क्या गाएगी वो, कंट्री ऑफ आयरलैंड इज कंसर्न विद स्टडिंग मोनामेंट्स ऑफ इट्स ओन सिग्निफिकेंस रादर देन कैरिंग फॉर मोनामेंट्स ऑफ एन एजिंग इंटेलेक्ट, वहाँ पे इंटेलेक्ट की बात नहीं सिखाई जा रही, केवल सेंसेस की ही बातें सिखाई जा रही हैं। इस वजह से पोइट क्या, नरेटर क्या डिसाइड करते, देयरफॉर, इस वजह से द पोइट डजंट फाइंड द राइट स्कूल टू एजुकेट हिज सोल, अपनी आत्मा को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छे से एजुकेट करने के लिए वो यहाँ राइट स्कूल नहीं पाता है, और कहाँ ट्रेवल्स कर जाता है, अक्रॉस द सीज के थ्रू, रीचेज द होली सिटी ऑफ बिजेंटियम, कहाँ पहुँच जाता है, होली सिटी बिजेंटियम में पहुँच जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड स्टेंजा। इसमें कहता है कि ओल्ड एज का जो मैन है वो पेटी थिंग्स बन गया है, और अपनी कंपेयर जो है वो स्केर करो से करता है, टर्टर्ड कोट की तरह उसका जो गला है वो ऐसे हो गए हैं। और वहाँ पे कहता है कि यहाँ पे एजुकेट इस तरीके से कि हम लाउडर लाउडर गाते रहें, हम क्लैप करते रहें, और उसके बाद हमारी जो हम इसी तरीके के ड्रेसअप हो जाएं, ड्रेसअप होने से मतलब सेम हम उसी सेंसेस में मिल जाएं जो यंग जो जनरेशन है, यंग जो पीपल है वो गा रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे कहता है इसी प्रकार की जो एजुकेशन है यही सिखाया जाता है, और मैं यहाँ पे मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है वो जो है उसके एजुकेट करने के लिए दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, ही राइट प्लेस नहीं है, इस वजह से वो मूव कर जाता है होली जो प्लेस है, होली जो सिटी है बिजेंटियम में, उसमें। Next, O Sezi standing in goddess holy fire, as in the gold mosaic of a wall, came from the holy fire, burning in a gire, and be the singing masters of my soul, consume my heart away, sick with desire, and fastened to a dying animal. It knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. अब इसमें भी किसका यूज किया गया है, इसमें भी ऑक्सीमोरन का यूज किया गया है और मेटाफोर का यूज किया गया है, लिटरेरी डिवाइस। और यहाँ पे किसको एड्रेस करता है, सेज को एड्रेस करता है। और यहाँ पे क्या बोलता है, पहले मैं कौन सा ऑक्सीमोरन और कौन सा मेटाफोर वगैरह इसमें यूज किया है वो बता देती हूँ। यहाँ पे जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन जो है, कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद रिचायर, यहाँ पे ऑक्सीमोरन, व्हाट यू मीन बाय ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें साइड बाय साइड जो हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट जो होते हैं
फीलिंग्स जो होती हैं, ऑपोजिट वर्ड होते हैं, तो वहाँ हम ऑक्सीमोरन का यूज़ कर रहे होते हैं। सेंटेंस में अगर कोमा लगा करके फिर ऑपोजिट होती हैं तो वहाँ पे कंसीट का रहता है, लेकिन अगर वर्ड बिल्कुल साथ साथ में वर्ड जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होती है तो वहाँ हम ऑक्सीमोरन का यूज कर रहे होते हैं। तो कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर, यहाँ सिकनेस भी दिखाई गई है, डिजायर भी दिखाई। सिक मतलब जो कमज़ोर हैं, जिसको हम कोई उम्मीद, कोई होप, कोई डिजायर नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ डिजायर दिखाई गई, होप दिखाई गई, आशा दिखाई गई है। सिक वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? जहाँ कोई जो है डिजायर, जहाँ जिसे हम कोई होप, उम्मीद नहीं रख सकते वहाँ, और डिजायर जो है एक उम्मीद है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। सो हेयर आर यूजिंग द ऑक्सीमोन। नेक्स्ट है, उसके बाद है एंड फास्टेंड टू ए डाइंग एनिमल। फास्टेंड टू ए डाइंग एनिमल, यहाँ पे कंपेयर की गई है उसकी ओल्ड एज मैन की किसके साथ में? डेड जो एनिमल है, डाइंग एनिमल। तो यहाँ पे हेयर इज यूज द मेटाफोर। मेटाफोर का यहाँ पे यूज किया गया है जहाँ पे अप्लाइड कंपैरिजन रहता है। एंड फास्टेंड टू ए डाइंग एनिमल, वो इतना फास्टेंड, इतना टाइट हो गया जैसे कोई डाइंग जो एनिमल्स है, मतलब डेड जो एनिमल है, कोई मरा हुआ पड़ा है एनिमल, उसकी तरह है। तो लेट अस स्टार्ट। ओ सेज इज स्टैंडिंग इन गोडेस होली फायर, यहाँ पे एड्रेस करता है सेज को, हु वर स्टैंडिंग, जो सेजेस हैं वो कैसे खड़े हैं? गॉड के होली फायर में, स्टैंडिंग इन गोडेस होली फायर, और कहाँ पे खड़े हैं? इन बिजेंटियम। बिजेंटियम जो प्लेस है वहाँ पे अब जो नरेटर है, ओल्ड मैन है, वो कहाँ पहुँच जाता है? बिजेंटियम। और जैसे ही बिजेंटियम पहुँचता है तो वो एड्रेस कर रहा है सेजेस को, और कहता है कि फोवर, वो कहाँ खड़े थे सेजेस जो हैं? स्टैंडिंग इन गोडेस होली फायर बिजेंटियम। ही टेल्स दम, उनको क्या बताते हैं? दैट द वे दे आर स्टैंडिंग, जिस तरीके से वो खड़े हैं, द सेम वे अ फिगर स्टैंड्स इन गोल्ड मसीक वर्क ऑफ अ वॉल, कि जिस तरीके से वो खड़े हैं वैसे ही दीवार के ऊपर जो उनका जो फिगर है, सेम तरीके से गोल्ड का बना हुआ मोसिक जो है वर्क ऑफ अ वॉल, एक वॉल के ऊपर भी ऐसा ही है। और वो क्या करते? केम फ्रॉम द होली फायर पानी ने गियर, और वो कहाँ से आई? ही आस्क्ड देम टू क्लाइम डाउन फ्रॉम देयर प्रेजेंट, जो उनका स्पिरिचुअल जो पोजीशन है उनसे आने के लिए बात करता है, और वो क्या बन जाए? बिकेम द एजुकेटर ऑफ ए सोल, कि वो उसके एजुकेटर बन जाए। सो उसकी सोल जो है वो क्या सीख जाए? राइट काइंड ऑफ सॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे आयरलैंड में किस तरह के सॉन्ग, सेंसेस से रिलेटेड सॉन्ग सुनाए जाते हैं, तो वो चाहता है कि कैसा राइट सॉन्ग जो उसकी सोल के लिए, उसकी आत्मा के लिए राइट सॉन्ग हो, राइट काइंड ऑफ सॉन्ग हो, वो सीखना चाहता है। और वो कहता है कैम फ्रॉम द होली फायर पान इन गियर, तुम यहाँ से, इस प्लेस से यहाँ आइए, एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई शोल, और क्या बन जाइए? मेरी शोल जो है उसकी सिंगिंग मास्टर बन जाइए, एजुकेटर बन जाइए। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर, और वो कहता है कि फर्स्ट थिंग पोइट्स वांट्स टू सेज, क्या करने के लिए? प्यूरिफाई हिज हार्ट, कि सबसे पहले क्या कीजिए? कंज्यूम माई हार्ट। कंज्यूम माई हार्ट मीन्स प्योरीफाई माई हार्ट सिक विद डिजायर, जो काफ़ी जो सिक हो गया है, विच इज़ हैवी, जो काफ़ी हैवी हो गया लाइक एनिमल्स। और वहाँ पे मैंने आयरलैंड में काफ़ी इंसेक्ट से मैंने इंटरेक्ट हुआ है, काफ़ी एनिमल्स से जो हैं, और जो फिजिकल लेस्ट से रिलेटेड जो लोगों से, तो इसलिए देर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ माई हार्ट, सबसे पहले मेरे हार्ट की प्यूरिफिकेशन। तो कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर, जो डिफरेंट डिजायर से, जैसे एनिमल से इंटरेक्ट हुआ है, कुछ हमारी फिजिकल और जो आर्टिफिशियल जो डिजायर होती है उन सब से। एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, और मैं कैसे हो गया, मेरा हार्ट कैसे हो गया? किस तरीके से? एक डेड एनिमल्स की तरह। तो यहाँ पे कंपेयर की जा रही है कि मेरा जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, वो कैसे फास्टेंड हो गया, बिल्कुल स्टिक हो गया है डाइंग एनिमल की तरह। इट नोज नॉट व्हाट इट इज़ एंड गैदर मी, और यहाँ पे कहता है कि इजी रहेगा उसके लिए कि मेरा जो हार्ट वो जो है वो क्या चाहती है? इट नोज नॉट व्हाट इट इज़, क्या चाहिए इसको? एंड गैदर मी, और मुझे जो है अपने पास में रख लीजिए। इन टू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, पोइट वॉन्ट्स टू बी ए पार्ट ऑफ दोज थिंग्स विच आर बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। पोइट्स यहाँ क्या चाहता है? इन टू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, जो इटर्निटी की जो आर्टिफिशियल जो इटर्निटी है उससे वो क्या चाहता है? उससे वो छुटकारा चाहता है, और वो चाहता है कि आप जो है मेरे को अपने साथ में ले लीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, इसमें सेज को एड्रेस करता है फर्स्ट में, और उनको बुलाता है और अपनी शोल का एजुकेटर बनने के लिए बोलता है। और सबसे पहले क्या बोलता है कि सबसे पहले मेरे हार्ट को जो है वो आप प्यूरीफाई कीजिए, और मेरा हार्ट जो है वो डिफरेंट टाइप की डिज़ायर से, सिकनेस से, इनसे भरा हुआ है, लाइक डेड एनिमल्स की तरह है।
और इस प्रकार से जो है आर्टिफिस इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी जो है मैं इससे क्या चाहता है, छुटकारा चाहता है। अब नेक्स्ट में बोलेगा कि किस प्रकार से मैं कैसे जो है गॉड के लिए किस प्रकार से मैं सॉन्ग जो है वो गाना चाहता हूँ। Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmiths make of hammered gold and gold enameling to keep a drowsy emperor away, or set upon a golden bow to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come। यहाँ पे नरेटर है वो एक एग्जाम्पल देता है कि किस प्रकार से एक बार जो है ग्रेशियन गोल्डस्मिथ ने क्या बनाया था, एक हमर्ड से गोल्ड इनेबलिंग लगा करके एक बहुत ही अच्छा जो है बर्ड्स बनाया था गोल्ड का, जो क्या करता रहता था, एम्परर को हमेशा अवेक करता रहता था, जगाता रहता था। तो यहाँ पे नरेटर कहता है, सेज से रिक्वेस्ट करता है, प्रेयर करता है कि मुझे भी ऐसा ही बना दीजिए ताकि मैं बेजेंटियम के जितने भी लॉर्ड्स हैं, जितने भी लेडीज़ हैं, उन सबको मैं क्या बताता रहूँ, मैं पास्ट प्रेजेंट और काम के बारे में मीन्स फ्यूचर के बारे में मैं बताता रहूँ। तो इस स्टेज में यही है। Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing। यहाँ पे फाइनल स्टेंजा में यहाँ पे कहता है once he is out of the cycle of nature। वो क्या होना चाहता है, ये जो सर्कल चल रहा है बर्थ डेथ का, मैं सबसे पहले इससे आउट होना चाहता हूँ और सीज कॉन्टैक्ट विद नेचुरल थिंग आउट ऑफ नेचर। आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। मैं अपनी बॉडी को किसी भी नेचुरल थिंग्स के साथ में कोई जो है अट्रैक्शन, कोई जो एक लगाव जो है वो नहीं रखना चाहता हूँ। नेचर से मैं इस सब से आउट होना चाहता हूँ। और नेचर से आउट होने का मतलब क्या है, साइकिल ऑफ नेचर, नेचर का जो साइकिल चल रहा है, बीगोटन बोर्न एंड डाइंग, जो हमने फर्स्ट में स्टेंजर में पढ़ा था, बीगोटन बोर्न एंड डाइंग। तो इस साइकिल से, नेचर से, इससे मैं बाहर आना चाहता हूँ। बट सच ए फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ मेक। लेकिन मैं किस फॉर्म में जाना चाहता हूँ, वांट्स टू टेक अ फॉर्म दैट इज ऑफ गोल्डन शेप हैज गोल्डन इनामलिंग, जिसमें गोल्डन की शेप और इनामलिंग भी किसकी हो, गोल्डन की हो। जो एक ग्रेशियन गोल्डस्मिथ ने बनाई थी, कंस्ट्रक्ट किया था एक गोल्डन का बर्ड, जिसका काम क्या था, सिंग टू एम्परर टू कीप हिम अवेक, उसको अवेक करने के लिए। तो वह सेम जो है मैं किस फॉर्म में जाना चाहता हूँ, ग्रेशियन गोल्डस्मिथ ने जो एक हमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेबलिंग लगा करके बनाई थी, टू कीप एट ड्रोसी, काफ़ी लेजी जो एम्परर था उसको अवेक करते रहे, ताकि मेक हिम कीप अवेक करने के लिए। तो वो भी क्या बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी गोल्डन बर्ड ऑफ इटर्निटी सो दैट ही इज सेट ऑन ए गोल्डन वॉक इन द कोर्ट ऑफ बिजेंटियम, ताकि कोर्ट में बैठ के, बिजेंटियम का जो कोर्ट है वहाँ पे मैं भी एक बर्ड बनना चाहता हूँ, वहाँ पे बैठूँ और मैं क्या कैसे गाऊँ, सिंग सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम्स, सभी टाइम्स का मैं सुनूंगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टू द लॉर्ड्स और लेडीज ऑफ बिजेंटियम। पोइट सॉन्ग का कैसा होगा, विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सेंसुअल म्यूजिक ऑफ द डाइंग जनरेशन दैट आर गोइंग ऑन इन आयरलैंड, एंड ही विल सिंग टू द मोनामेंट्स ऑफ एन एजिंग इंटेलेक्ट। और वो कैसा गाएगा, पास्ट के बारे में, पासिंग के बारे में, और टू कैम, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों उसके बारे में वो गाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि मैं जो है आउट ऑफ नेचर से मैं अपने बॉडी को अलग करना चाहता हूँ, जो साइकिल ऑफ नेचर चल रहा है उससे। और ग्रेशियन गोल्डस्मिथ ने जो बर्ड्स बनाया था एम्परर को कीप अवे करने के लिए, सेम तरीके से मैं भी एक जो है गोल्डन जो है बर्ड्स बनना चाहता हूँ। और कहाँ पे, कोर्ट में, बिजेंटियम के कोर्ट में बैठ करके सबको मैं किसके बारे में बताऊँगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, ना कि मैं सेंसुअल म्यूजिक गाऊंगा जो डाइंग जो जनरेशन जो गा रही हैं वैसा। दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ। सो थैंक्स अ लॉट, मे यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको पसंद आएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने इसमें लिटरेरी डिवाइसेस को भी बताया है, इसमें हर एक लाइन्स को, इसकी बैकग्राउंड, कब पब्लिश हुई, कब ये रिटन हुई, तो वो सारा बताया है। सो थैंक्स अ लॉट।